Hello and welcome to CDEC Institute Thane. Today in this lecture we are going to discuss a very important topic for your Indian geography and world geography, which is your physical geography overall, and we are going to discuss a topic known as atmosphere and its composition. So what is atmosphere? Atmosphere क्या है? Atmosphere is a envelope of gases, is a blanket of gases around our earth surface. For example, if this is the surface of the earth, then what is the blanket of gases which have surrounded our earth? Earth is a planet. Earth is not a star. What is the difference between planet and a star? Planets are non-luminous and stars are luminous. For example, sun is a star, but earth is a planet. So what is atmosphere? Atmosphere is a blanket of gases which envelop our earth. तो अर्थ के चारों तरफ जो एक blanket of gases है उसी को हम क्या बोलते हैं? Atmosphere बोलते हैं. And there are various layers of the atmosphere. Which are those gases which envelop? For example, we have nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, hydrogen, and then we have these are the gases. We will see what is the amount of gases which are present. Then there are 5 layers of the atmosphere. Which are those 5 layers? We have the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the 5 layers of the atmosphere you can see. And what is the significance of these layers? If I ask you which layer of the atmosphere is suitable for the flying of aeroplanes or aircraft, can you please mention? And if I ask you which of the following layer is responsible for all weather related phenomena, it is troposphere. Troposphere is the lower most layer of the atmosphere, जहाँ पे रेनफॉल होगा, फॉग्स होंगे या फिर जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आना होता है किस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आता है? ट्रोपोस्फेयर में आता है. सो देयर आर 5 layers of the atmosphere. What is atmosphere? Let's see. Atmosphere is a envelope of gases. Envelope of gases surrounding the earth is called as atmosphere. So envelope of gases which surrounds the earth's surface is called as atmosphere. Which are these gases? Let's see. These gases are, see here, these gases are nitrogen, oxygen. Nitrogen is 78.08%. Then we have the oxygen 20.95%. Argon is 0.93%. Carbon dioxide is 0.036%. Then we have neon, helium, crypto, xenon and hydrogen. So these are the various gases which envelop our atmosphere या which envelop our earth. तो ये gases present होते हैं. Again, if the concentration of CO2, if the concentration of carbon dioxide is increasing due to the release of greenhouse gases or we can say due to the release of industrial effluents, तो industrial emissions हो रहे हैं या फिर let's suppose pollution की वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का concentration एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? There will be increase in the greenhouse gases because carbon dioxide is a greenhouse gas. And what is a greenhouse gas? Greenhouse gases are those gases which have the potential to trap the heat from the atmosphere. तो greenhouse gases are those gases which have the potential to trap the heat from the atmosphere. और एक बार अगर वो heat को trap करेंगे then they will make our earth more warm. तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ फेनोमेना. तो आपको कमेंट करना है कि विच आर द अदर ग्रीन हाउस गैसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. सो विच आर दोज गैसेस विच इन्वेलप आवर एटमॉस्फेयर? वी हैव नाइट्रोजन 78.08%, वी हैव ऑक्सीजन विच इज 20.95%, देन वी हैव द आर्गन इज 0.93%, एंड देन वी हैव CO2. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नाइट्रोजन, देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव आर्गन, देन वी हैव CO2. एटलीस्ट ये 4 तो आपको याद ही रखने हैं सो दैट एग्जाम में अगर आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर यू विल बी इन अ पोजीशन. हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, हीलियम इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट 0.00005%. So this is the concentration of the gases. If we have understood what is atmosphere, सबसे पहले हमने क्या समझा भाई? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ envelope of gases which is surrounding the earth. एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस है. नोबल गैसेस मतलब दोज गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट वेरी इजीली. सो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस. वेपर, वेपर क्या होता है भाई? वेपर इज दी वेपराइज्ड फॉर्म. आप कह सकते हैं जब वाटर इवापोरेट होगा तो क्या बनाएगा भाई? वेपर बनाएगा. देन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, द स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स. सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स. Again, it also contains huge number of solid and liquid particles which are called as aerosols. So our atmosphere consists of gases, our atmosphere consists of vapor, our atmosphere also contains of particulate matter. आपने सुना होगा PM 2.5,
particulate matter 2.5, PM10. These are what? These are the particulate matters. Again, we have understood these are the, then again, based on the change in the temperature, for example, based on the change in the temperature, atmosphere can be divided into 5 layers. तो टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस पे हम एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. विच आर दोज 5 लेयर्स? दीज आर द 5 लेयर्स. वी हैव troposphere, we have stratosphere, mesosphere, thermosphere, which also contains ionosphere and exosphere. Now let's understand the details regarding each and every layer of the atmosphere. What is troposphere? Troposphere is responsible for all weather related phenomena. Troposphere is responsible for all weather related phenomena. तो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना आप देख रहे हैं वो सब कहाँ होते हैं? वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में. ट्रोपोस्फेयर इज अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर ऑल द वेदर रिलेटेड फिनोमेना विल हैपन. फॉर एग्जांपल, रेनफॉल हो रहा है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहा है, फ्लड आना है, ड्रॉट आना है, वो सब किस लेयर में आएगा? ट्रोपोस्फेयर में आएगा. एंड एज यू गो अबव इन द ट्रोपोस्फेयर, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में हाइट पे जाएंगे, एल्टीट्यूड पे जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीजेस. बट टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ every 1 kilometer there will be decrease of 6.5 degree Celsius. In troposphere as we go at upper height, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट. तो यू हैव टू रिमेंबर नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट इज अ फेनोमेना वेयर, नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है? ड्रॉप होता है. एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स एट द रेट ऑफ एवरी 1 किलोमीटर देयर विल बी ड्रॉप ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस. तो ट्रोपोस्फेयर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस पे हम एटमॉस्फेयर को 5 में क्लासीफाई कर सकते हैं, 5 लेयर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. विच आर दोज 5 लेयर्स? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, mesosphere, thermosphere and exosphere. Troposphere में you have to remember 2 things. First, what we have discussed, troposphere is a layer where all weather related phenomena will occur. Weather related phenomena means there will be rainfall, there will be storms, fog, smoke, जो भी होगा वो सब कहाँ पे होगा? सब troposphere में होगा. एंड ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा. किस रेट पे डिक्रीज होगा? फॉर एवरी 1 किलोमीटर देयर विल बी डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं. देन सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर इज अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अच्छा, एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी? अगर एवरेज हाइट आप ट्रोपोस्फेयर की पूछोगे तो इट विल बी सम अराउंड 13 किलोमीटर. एवरेज हाइट कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है. ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द पोल. इक्वेटर एंड पोल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो पोल पे इसकी हाइट जो है वो केवल 8 किलोमीटर तक जाएगी. ऑन दी अदर हैंड इफ वी कंपेयर ऑन द इक्वेटर इट विल गो अप टू 18 किलोमीटर. तो what is the height of troposphere in the equatorial region? It can go up to 15 to 18 kilometer or safely we can say 12 to 18 kilometer. What will be the height of troposphere in the pole region? 8 kilometer. Average height पूछेगा आपसे तो कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर. तो ये चीज याद रखेंगे. Above this 18 kilometer or 13 kilometer we have the stratosphere. Stratosphere is that layer of the atmosphere which is ideal for the flying of aeroplanes. तो stratosphere के बारे में हमने क्या ध्यान रखना है? It is suitable for the flying of aeroplanes. But sir why? एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट के फ्लाई करने के लिए सुटेबल कंडीशन क्यों है? आइडियल कंडीशंस क्यों प्रोवाइड करता है? बिकॉज देयर इज अब्सेंस ऑफ क्लाउड एज वेल एज द डस्ट पार्टिकल्स. क्लाउड होंगे भी तो बहुत डिस्टर्बिंग क्लाउड्स नहीं होंगे. अगेन दे विल नॉट बी सो मच रेन बियरिंग क्लाउड्स. तो स्ट्रेटोस्फियर ऑल्सो कंटेन्स ओजोन लेयर. याद रखेंगे विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर कंटेन्स ओजोन लेयर? Stratosphere. Stratosphere contains ozone layer as well, and you know ozone layer is responsible for protecting us from the harmful ultraviolet radiations which are coming from the sun. तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. प्लीज रिमेंबर दीज डिटेल्स. सो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हमने क्या ध्यान रखना है? स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में 2 चीजें याद रखना है. फर्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज आइडियल फॉर द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स. एंड सेकेंड, स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर विच कंटेन्स ओजोन. ओजोन क्या है भाई? ओजोन इज अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. किस लेयर में प्रेजेंट है? इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ओजोन एक गैस भी तो है, O3. ओजोन इज ऑल्सो अ गैस. ओजोन इज ऑल्सो अ गैस. लेकिन अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होगा, इफ ओजोन विल बी प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर इट इज कॉल्ड एज बैड ओजोन. क्यों? क्योंकि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस भी है.
अगर ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होगा विच इज द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर या फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, देन इट विल ट्रैप द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, जो हीट जनरेट हो रही होगी अर्थ से, उसको ट्रैप कर लेता है एंड अगेन इट कॉजेस सो मच ऑफ द हीटिंग ऑफ द आवर एनवायरमेंट और आवर एटमॉस्फेयर। सो याद रखेंगे ओजोन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन कब? जब ओजोन प्रेजेंट होगा ट्रोपोस्फेयर में। तो विच इज द गुड ओजोन? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। सो देयर कैन बी टू टाइप ऑफ ओजोन, वन इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मतलब जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? बैड ओजोन बोलते हैं। एंड देन देयर इज अ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मतलब ऐसा ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। एंड विच इज अ गुड ओजोन एंड विच इज अ बैड ओजोन? गुड ओजोन इज द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। जो स्ट्रेटोस्फियर वाले लेयर में ओजोन प्रेजेंट है वो गुड ओजोन है। वाई इट इज अ गुड ओजोन? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। सेकेंड, ट्रोपोस्फेयर वाला जो ओजोन है वो बैड ओजोन क्यों है? वाई इट इज अ बैड ओजोन? बिकॉज इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस एंड व्हेन इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस इट एब्जॉर्ब्स द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड इट वार्म्स आवर एटमॉस्फेयर और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। तो हमने दो लेयर समझ लिया। देन देयर इज थर्ड इज द mesosphere. What we have to remember about the mesosphere? Mesosphere is that layer of the atmosphere which is the coldest layer of the atmosphere. अगर आपसे पूछा जाए out of troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere, which is that layer of the atmosphere which is the coldest layer of the atmosphere? मीजोस्फीयर। यहाँ पे टेम्परेचर आपको -100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। -80 से लेके -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता हुआ दिखेगा और इवन मोर लेस। देन मीजोस्फीयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज जो मेटियोर्स होते हैं, द मेटियोर्स बर्न इन दिस लेयर। व्हाट आर मेटियोर्स? मेटियोर्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्लैनेट और द रिमेन्स ऑफ द एस्टेरॉइड्स, रिमेन्स ऑफ द प्लैनेट्स, रिमेन्स ऑफ द प्लैनेट्स। देयर आर वेरियस टर्म्स जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द मेटियोरॉइड, मेटियोर, मेटियोरॉइड। मेटियोर्स क्या होते हैं? दे आर द रिमेन्स ऑफ द एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स आर द रॉक डेब्रिस और द सॉलिड डेब्रिस विच वॉज लेफ्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। और जो हमारा प्लैनेट है वो किससे मिलके बना है? रॉक से मिलके बना है, नेबुला से मिलके बना है। व्हाट इज दिस नेबुला? नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो हमें याद रखना है जो मेटियोर्स होते हैं, मेटियोर्स मींस दीज आर द सॉलिड डेब्रिस जो एस्टेरॉइड बेल्ट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं एंड अगेन दे आर एंटरिंग इनटू आवर एटमॉस्फेयर। तो अगेन मेटियोर्स बर्न इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? इन मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर के बारे में हमने दो चीजें क्या याद रखनी है? फर्स्ट, मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड सेकंड, मेटियोर्स बर्न इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? मेटियोर्स बर्न इन द मीजोस्फेयर। एंड देन वी हैव द थर्मोस्फेयर। In thermosphere what is there? In thermosphere there is ions present. Ions present होते हैं, electrically charged ions present होते हैं. So thermosphere is a layer which is responsible for रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा लेयर पॉसिबल होता है या रिस्पॉन्सिबल है? वी हैव दी थर्मोस्फेयर। सो थर्मोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेडियो कम्युनिकेशन, जो रेडियो वेव्स हैं वो जाएंगी और थर्मोस्फेयर में आयंस से टकराने के बाद अगेन दे विल कम बैक। देन वी हैव दी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन द कमेंट सेक्शन आपको हर एक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की हाइट बतानी है। सो अभी क्या डिस्कस किया आज के लेक्चर में? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ द गैसेस, यू कैन सी हियर, एंड देयर आर 5 लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना प्लस टेम्परेचर। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाएंगे ट्रोपोस्फेयर वाले लेयर में क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। आप यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। देन विच इज द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को? वी हैव द ट्रोपोपॉज। ऐसे ही ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग कौन करेगा? या आप कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर को वी हैव द स्ट्रेटोपॉज, देन वी हैव द मीजोपॉज। तो ये आप समझ सकते हैं दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन चार्ट विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th। इसको आप इन लोग एक बार देख लेंगे, टेम्परेचर वेरिएशन। देन वी हैव द स्ट्रेटोस्फेयर। देखो स्ट्रेटोस्फेयर इज अ लेयर विच इज आइडियल फॉर द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स। ओजोन लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। I hope you have understood these are the 5 layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. You have to find out, you have to comment in the comment section what are auroras. Aurora क्या होते हैं? You have to find out what are these auroras. Auroras are the natural phenomena which are also known as aurora borealis and aurora australis.
They are caused due to the interaction of solar flare and earth magnetic field lines. Please find out more about the auroras, and for more such interesting video you can follow our YouTube channel. Thank you so much.